फैकल्टीज के ऊपर आते हैं और अटैक्स हर वक्त जारी है स्टूडेंट्स के खिलाफ भी। इन सारे आंदोलन में हम प्रोफेसर लोबियाल को हमारे साथ मिला है, हम लोगों को उनका सॉलिडारिटी, उनका साथ, उनका विजडम टू टेक द स्ट्रगल फॉरवर्ड। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर लोबियाल, और उसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव। Thank you for inviting me here. Let me begin with, most of you might have read this document. It's not a big document, by the 14 page का document, आधा हिंदी आधा English, so it comes around 7 pages, right? Everybody might have read it, but look, see, let me start with one point. It may be an academic point. Whether it is equity or equality, that's where always a matter of debate. See, the moment you talk of dignity, I think it should be equality of dignity rather than equity of dignity. That's most important part. See, every human being has equal dignity, not equity of dignity. कि भाई आपका इतना ही weight है तो आपकी इतनी dignity होगी, आपका इतना weight है तो आपका, that cannot happen with the dignity. So the entire remedy for the discrimination must deal with equality rather than equity. That I believe in. But let us forget about that. That may be an academic discussion where academicians can debate for hours on that. The second question comes, anytime any regulation comes, the struggle goes on. It starts from Mandal Commission, 1991-92. The struggle goes, it seems a replica again. And you look at 2006-07 when the reservation for associate professor in at the faculty level came, again the same struggle began with. There has been polarization across the country and across the university system. The teachers who are standing opposite to each other. जो SC/ST वाले एक तरफ, rest और OBC इधर और बाकी उधर. This is how the whole polarization goes and the struggle goes, fight goes. That always happens. So that's, if you look from this angle, this is not new that this is going to happen. Now the question is, I think it seems that the upper strata of the society seems to be in the denial mode of the caste-based discrimination. It appears from. But they forget, जब वो ये कहते हैं कि भाई झूठी कंप्लेन का क्या होगा, that means they accept that there is a caste-based discrimination. That statement itself shows the acceptability of the caste-based discrimination. नहीं तो झूठी कंप्लेन की बात आई कहाँ से? So, in spite of that, they are always in the mode of denial कि discrimination नहीं है. That's how the whole fight goes. So now with this definition, and if you look at the judgment of the Supreme Court, I'm not probably competent to talk on the Supreme Court comments, but let me put few things on that, 3-4 points what they have raised. Now look at, one of the point is, if a well-off SC/ST OBC discriminates other SC/ST, then what will happen? This is one of the part of the 4 questions which Supreme Court raised. Now, will it be a caste-based discrimination? That's the question is. If I discriminate somebody else who comes from the same community, will it be designated as the caste-based discrimination? There are any number of ways of discrimination, but this cannot be caste-based discrimination. Number one. So I think this question itself is questionable whether this really question exists or not. See, all discriminations are not caste-based discrimination. That's why I think the clause which the Supreme Court says, but clause 3C is necessary if there is clause 3E, जिसमें आप caste, religion, race, birth of place सबकी बात करते हैं. Then there is a clause that caste-based discrimination. वो कहते हैं जब आपने discrimination की बात कर दी, then caste-based discrimination अलग से लिखना जरूरी है. That's what the question comes. Now I think that question Supreme Court raised, but to me, at least I am very clear that this is important. Important with 2 reasons. I think there is a difference between caste-based discrimination and other discriminations. Discrimination may remain in the society if you look at, and then it's a very special kind of discrimination, therefore you need special treatment. That's what I think. Why it is special discrimination? The moment I raise this point, let me bring in other question the Supreme Court raised. If there is a ragging, and ragging is by some SC/ST OBC of an upper caste student or vice versa, then whether it will be caste based or not. Look at this.
Ragging is a larger discrimination, but it's not that the ragging does not involve caste-based discrimination. If some of you might have gone through the ragging, I have gone through in the engineering, I know it very well. What ragging means. It's not only that all ragging is non-caste based. तुम कोटा से हो? That is what the moment you rag a student, saying that you have come through the quota, you don't need to study, and you will get a job. Is this ragging not caste-based ragging? It is. So ragging is a multi-layered approach. Even the discrimination, if I look at the discrimination of ragging, it may involve caste-based ragging also. So now the question is, yes, if this ragging is based on the caste, then it is caste discrimination, why not? But all raggings are not caste-based ragging. That's what one has to distinguish between. So whether these questions are legitimate or not. So therefore the committee has to, or any institution has to inquire into whether it is a caste-based ragging, even if it is ragging. And you have a separate committee for ragging in the university system, right? So that means you believe that there is a discrimination based on ragging, there is a committee for that. Then if you believe that there is a caste-based discrimination, then why not there must be a committee for that also? So the special discriminations has to be treated especially, that's what I'm saying. So therefore, and look at, the problem with the document is, I believe, which is, neither it's of the purpose for which it is made, nor there's a need for a huge cry from the other side also. That's what I read it. Why I am saying this is, आपने एक रैगिंग का डॉक्यूमेंट उठाया कि रैगिंग का स्क्वाड होता है और आपने बना दिया कि यहाँ पे एक स्क्वाड बना देंगे हम. रोमियो स्क्वाड बना था कहीं पर. सो लाइक इक्विटी स्क्वाड इज लाइक रोमियो स्क्वाड. इधर घूमेगा उधर घूमेगा और देखेगा कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा कहीं पर. Is this the way that the caste based discrimination or sexual, where people talk of false complaints? Let me put it very clearly in my mind what it is. मुझे कोई एक कानून बता दीजिए जिसका मिसयूज नहीं होता इस देश में. Not all laws are 100% implementable. I believe in that. Not all laws in a society, all laws, any law you make, that will be misused. Even if, what I am trying to say is, but look at that, what is the conviction rate? If anybody, now I know we are not going to get any justice. So if the conviction rate is so low, even the stakeholders are discouraged to go to such institutions, then it is not proper to talk of false complaints at that scenario. Had it been that we have a good conviction rate, when the complaints come, they have been treated well, and those who are victimizing have been convicted, punished highly, then we must bother about the false complaints. There is no, I'm not saying it cannot happen, it happens. I have been part of an inquiry, it happened. Right? It was a case against, when the Mamidala came as a vice chancellor 2014, how many of you remember? There is a case against some of the faculty who was Christian, that religious. Why this religious important is coming, I'll tell you. Okay, hostel वार्डन आया, उन्होंने हमारे हम कुछ यज्ञ कर रहे थे, हॉस्टल में लात मार दिया. I don't know how many of you know. If some of you have been there, you may be knowing it. And it was totally false. And see, you cannot have fire in your room in the hostel. And some student complained there's a fire. Then the warden went. कि भाई आप अंदर आग जला के ये नहीं कर सकते. Then there was a case made that in the religious sentiment को हट कर दिया. हमारे क्या बोलते हैं उसको वेदी, what is called when you do यज्ञ, उसको लात मार दिया. And then what I was part of that committee. Then again some complaint was we were discriminated by the warden based on caste. So the caste came, religion came, something else came. So all whatever you can do. Then it's a caste में कहा क्या इन्होंने? इन्होंने कहा तुम शेड्यूल कास्ट हो. मैंने कहा शेड्यूल कास्ट तो कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. There is a list where castes are listed in the schedule, that is why you call schedule caste. Schedule caste is not an abuse. It's a constitutional word. और क्या कहा? उनको पता नहीं और क्या, because he doesn't know your caste, you don't know his caste. और क्या बस शेड्यूल कास्ट कहा जी. That means आप झूठी बात कह रहे हैं ना. Schedule caste is not an abuse. Now look at what I am trying to say. Yes, but it doesn't mean that the student is punished. Because laws in the law, if the person filing a petition and complaining and he loses the case, he will be punished. There's nothing like that. Then why only in this case you need something called that there should be a clause where if there's a false complaint, the action would be taken. Is requested to shift here because the mic has been.
उठाना चाहिए I think उठाना चाहिए I think I have tried to address the four issues which Supreme Court has raised, and probably the lawyers on the other side will answer those questions in the Supreme Court. But I think this order is abeyance, this regulation is abeyance till further things are done. That's fine, all right. रेड स्टार यहाँ नहीं आएंगे। उधर नहीं अभिषेक अभिषेक इधर ही Hello. See, what I try to do is some questions, 3-4 questions which are raised by the Supreme Court, I try to address them with the way I look at it. That's what I did. Now, look at it why these 2012 regulations really came into existence. Forget about now it is 2026. Why 2012 regulations came into existence? What was there before? I think 2006 or 2002, the Equal Opportunity Office was, the UGC came with an executive order perhaps, that all universities should have equal opportunity offices. And JNU has one, right? And look at, if you look at the JNU level I'm looking at, how many such complaints we have been really able to address it now? I don't think many. Now the question is, and now that was not sufficient. And the suicides that has taken place in IIT, and the Supreme Court in its judgment, it says, comment, that 50% of the suicides are by SC/ST students. 50% of the suicides, or 50% or 50%. Now, what I'm trying to say, a large number of the suicides committed by the SC/ST students. And what are the reasons for that? Right? N number of reasons can be given that. There is a committee which looked into that. Even the aims. So what I am saying is, it is well-known problem that there is a caste-based discrimination that exists in the Indian institutions, right? And being JNU, probably we don't feel as like it is in IITs and other technical and medical institutions. It is probably unbearable. Now, based on that, the UGC required to modify these regulations which came in 2012, and that's why 2026 came. Only thing is, I was also listening to the news and reading that document. If you look at the 2012 document very clearly, in the clause 3.2, it also talks about specific discrimination to SC/ST, but not OBC. Only OBC is added here. And the whole problem from Mandal Commission के टाइम पर जब 2007 में जब आया, SC/ST तो ठीक है, OBC ठीक नहीं है. See, the moment OBC is added, the narrative changes. The moment OBC is not there, you hate for SC/ST. There is a hatred for SC/ST, the only reason why it should be, because there is no OBC. The moment OBC comes, it's shifted. So you shift your narratives based on what suits you. That's how I look at it. And the most important point is, if you look at this document in its entirety, and you will find it does not talk of non-foundation. The systematic discrimination or the systemic discrimination which takes place in the institutions, does this regulation have anything to deal with that? Recently, in the next door to JNU IIT Delhi, there was a seminar
last week. They have a training program. They invite students from all other IITs and IITs. I was there also last year to talk. And Professor Thorat inaugurated that conference, and then there was a lot of speakers from abroad and India, those who talked about caste-based discrimination. Then probably some group complained that all speakers are from one group, and there's an inquiry committee set up on that. So even if you have a debate on discussion on caste-based issues, if there's a committee to look into that, is this not a discrimination? That means whether there is a space to discuss on caste-based discrimination or not, or caste-related issues or not. The Indian institutions, leaving aside JNU, even JNU we are finding it difficult now. It's not that it is easy in JNU right now. Has a problem with that. So the shrinking of this space for debate on caste-related issues is not a discrimination. How do you deal with that? And if you look at the reservation, none found suitable is the easiest way to deny. And look at this, I'll look further. How many of you know, I don't know. Till 1991, there was a clause if the positions of SC/ST, because OBC reservation was not there, are not filled with the reserved candidates, they can fill with the general candidates. Till 91, this was a prevalent rule. Right? It was much easier to say there is no candidate, therefore you fill it from the unreserved category. Then that means, and all of a sudden, when I think the government say no, if it is no candidate is found, the seat has to be left vacant. You cannot fill up from, then all of a sudden you find people, they started filling up the positions. What is this? A year back, people are not suitable. After a year, they become suitable. So until unless some measures are taken to force you to implement these affirmative actions, we are not ready to implement it. So in a country like us, until unless you make specific measures to deal with these discriminations, and the flexibility which right now being talked about is not workable in this country. Caste is a reality of the nation. There is no issue that nobody will deny that. And how to deal with that? If you really want to promote equity, can you bring that this is not also possible? You feel a pride that I am a Brahmin, I am a Rajput, is a pride? It's other way of discriminating. The moment I say I am a Brahmin, I am a Rajput with a pride, that means you are lower to me. Is this not a discrimination? How to deal with that? It's not always calling you come from the quota, you are a SC, you are a ST. It's not only way of discrimination. The other mechanism, it's called positive way of, some people call it, is that I'll have pride in my caste. So the moment you take up casteless society, even the Supreme Court is talking about casteless society, it cannot be a reality until unless those who are the victimizers, I'm not saying that every upper caste, everybody is a victimizer, no. It's not true. Those who are victimizers, they must not have a pride in their own caste system. Till that happens, this is discriminatory. इसको कौन रोकेगा? इसका क्या लॉ है? 91 के बाद तो आपको अभी भी आप क्या है? You have filled up some positions. Now you say where you don't want to fill the most of the reserve posts are NFS now in JNU, and that is a big lot of OBC because SC/ST was already there because the reservation was earlier. OBC came later, so more positions fall vacant. Still you find NFS. Not only that, I'll tell you a story to how this is happening. I was a liaison officer in JNU, and when in 2012-13, in language, I'll not tell the center. In language, there was a reserved vacancy. Therefore, this post should be unreserved. There will be two reasons. One, you may have some candidate who is known as C in mind. So the moment it becomes unreserved, you can fill up. One of the reasons could be. Second could be really there may not be a candidate. I'm not denying that also. If you look at objectively, but I'll put my argument on the side. Third is, how do you know that there is no candidate? Without advertisement and inviting applications, how do you know that the candidates are not available?
Do you feel that only JNU teach Chinese or German or French or foreign language, not other institutions? Now then, it came to me. I wrote a note. I think the note was, I said, I'm surprised to know that the department and the center already know that the candidates are not available without advertisement and inviting applications. And second is, JNU being in existence for 40 years, these centers, they have not been able to produce a candidate from the reserved category is also shocking to me. See, it is also the responsibility, what I am trying to say is, if the institutions are, and the fight which is going on, the battle where people say, no, this discrimination, that discrimination, society has to be equality. Now the question is, how to deal with that? Is there any measure in this document where such kind of, is this not an issue? Is it? The moment I said the candidates are not available, then what we did 40 years in the JNU. If I say that there is no student in computer science SST available after 50 years of its existence, then it is shame on me also. I will not hesitate on that to say. But who will raise these questions? Does this document talks of these systematic discriminations and treatment, how to deal with that? There is nothing in this. I think today, it is more important to deal with the systematic discrimination than the overtake which is a caste-based gali de di. So, we need, because the SC, ST, OBC are also have become more proactive and more assertive. There's no doubt about that. After Mandela Commission, that has what has emerged. We are not that stubborn now. If you say something, people will keep quiet. Yes, some may be, but there is a change. The change has come where these people have also become assertive. So that discrimination probably can be dealt by individuals and the groups. But how to deal with the systematic discrimination? I think if the UGC document comes with more clauses with dealing with the systematic discrimination, will be much better. And it will really serve the purpose, which is not serving the purpose at all. We said in the SC Commission, by putting a representative from SC/ST, you are not going to make that the positions will fill up. Who will nominate? The Vice Chancellor will nominate. लोबियाल पसंद आता तो मैं हो जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. लोबियाल अगर उनकी मन की बात करेगा तो बुला लेंगे, लोबियाल को नहीं बुलाएंगे ना. It's a fact. अब वहां पर जब उनकी बात मानने वाला है मुझे तभी बुलाया है, तो इसी को करना तो वही साइन करोगे ना मैं. So this notional representation is not also serving the purpose. Therefore, what is said is, out of the expert if possible, any expert may be possible. If there are experts possible, one of the experts must be there. And that list should be not by the Vice Chancellor, should be a list put on the UGC. The way the UGC document is written and the purpose for which has made, if it includes those things, how to deal with such kind of discriminations, it will serve more purpose than what it talks right now. And yes, of course, if you look at the difference between the objectives, where it talks of religion, everything. But in detail, it does not talk about these religious discrimination, other discriminations. I think while writing these documents, it is very well known fact that the institution has a discrimination based on caste, largely. बाकी discrimination तो कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. Individuals may be discriminated, but this is a specific kind of discrimination. I think the document was made for that purpose, but it's still not serving that purpose. And the opposition which is coming from the other side is only with two reasons. कौन सा स्वामी जी थे जो हरिद्वार वाला किस्सा चला अभी मुक्तेश्वर बाबा. I think to subsidize that Allah bolo, and this government has a very good way of, if one Allah comes, bring something new, then Allah gets suppressed. I think this all shouting on this issue has really subsidized that issue. Timing is very important. To me, when I am assessing, I said this issue has been brought in for that. Now, also that issue is subsidized and this is also managed by putting it in abeyance. Ab go to manage over there. And by 2-3 months, something will come. Whether what it will address. So my only last point is, neither it is serving the purpose for which it has been made,
not that any need for that you will cry from other side. That's what my understanding of this document. Thank you with this. Thank you. सेव कर लेना इसको लास्ट में। अरे अपलोड हो जाएगा सीधा। अभिषेक Thank you, Professor Lobial, for such an illuminating discussion. We would now like to call upon Dr. Lakshman Yadav, who is a renowned academician and a social activist. और उनका बुक प्रोफेसर की डायरी जो रोहित वेमुला को डेडिकेट किया गया है, दैट इज एन आई ओपनिंग बुक दैट वी ऑल शुड रीड. और उनका इस फील्ड में एक्टिविज्म में आंदोलन में शामिल है. जो भी द मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस दैट इज बीइंग वेज्ड थ्रू आउट द कंट्री, उनका कंट्रीब्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. एंड विद दैट नोट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर लक्ष्मण यादव. शुक्रिया और शुक्रिया JNU SFI कि आपने इस जरूरी विषय पर यह बातचीत रखी. मैं जब लोबियाल साहब को सुन रहा था तो ये लग रहा था कि जितनी बातें आप कह रहे हैं अगर वो मान ली गई होती तो मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो हो ही गया होता. क्योंकि वो सब नहीं माना गया इसीलिए ताकि मनपसंद लोग प्रोफेसर बनते रहें और जिसको मन चाहे उसको प्रोफेसर बना दो. और इस बात को अब JNU से बेहतर कौन समझ सकता है. मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा भी है और एक किस्सा ऐसा है जिसमें पात्र का नाम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनको राजनीति शास्त्र विभाग में इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताओ मार्क्स और लेनिन में क्या फर्क है, तो वो कहें कि वही 19-20 का, और उसके बाद भी उनका अपॉइंटमेंट हो जाए. क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बनती ही ऐसे है. और बहुत शानदार बातें आपने सुनी कि ऐसी सिलेक्शन कमेटी बनती है जहां जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, हेड ऑफ बोर्ड है, उसके मन का हो जाए. आज एक विश्वविद्यालय में हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं भी थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं और अपनी दूसरी किताब जाति जनगणना का एक संदर्भ भी लूंगा कि वो मंडल का दौर जिसे हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा, आपने देखा और आपने बताया भी. मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था सर, 14 साल पढ़ाया, वहां के प्रोफेसर बोला करते थे और उसमें बहुत सारे प्रोफेसर सवर्ण थे. और आज तो यहाँ जाति की बात हम लोग करने आए हैं और हम सब जातिवादी कहे जाएंगे. लेकिन अगर समता समिति पर बात करना भी अगर जातिवाद है तो थोड़ा मंजूर है, क्योंकि वो तो समिति समता के नाम पर बनी लेकिन उसका विरोध जाति के नाम पर हुआ. और उस समय के प्रोफेसर ने ये बात बोली भी थी कि हम लोग विचारधारा के नाम पर मंडल कमीशन का समर्थन कर रहे हैं, हम न्याय और समता के मूल्य के आधार पर मंडल का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन यही DU JNU और खासकर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट उसके विरोध का झंडा बुलंद किए हुए थे. हमने अपनी आंखों से वो आंदोलन नहीं देखी, किताबों में पढ़ा, कुछ पुरानी फुटेज है और अखबारों और मीडिया की कहानियां यहीं से शुरू होती हैं कि कैंपसों को भी जातिवाद का अड्डा बना दिया गया और जाति के नाम पर अब शिक्षक प्रोफेसर सबको और स्टूडेंट्स को बांट दिया गया और देश में आग लगा दी गई. मैंने अपनी किताब में लिखा है जाति जनगणना में कि जब यही सवाल उस वक्त के प्रधानमंत्री से पूछा गया था जो OBC नहीं थे और जिन्होंने अपनी जाति भी नहीं बताई थी, वो एक सवर्ण थे लेकिन वो समता और न्याय में यकीन रखते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह. और उनसे जब उन्होंने एक चैनल में ये बात कही भी कि मेरे पास विद्यार्थी आते हैं पिछड़े वर्ग के और बहुजन समाज के, तो वो ये कहते हैं कि अखबार लिखता है कि देश भर के युवा मंडल के विरोध में सड़क पर उतरे. तो क्या हम इस देश के युवा नहीं है? हमारी आबादी 80% और हमारे बारे में कोई कहता नहीं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं.
क्योंकि अब तक ये विश्वविद्यालय हमारे लिए नहीं खुल पाए थे संविधान लागू होने के बाद। तो ये कैसी मीडिया, कैसा अखबार। और यही दौर मुझे अब दिखा जब टीवी चैनल बैठ करके साफ तौर पर ये कहते रहे कि जातिवाद खत्म करने के नाम पर हमने अब जातिवादी फैसला ले लिया है और एक कम्युनिटी के खिलाफ फैसला ले लिया है। सारे एंकर यही बोल रहे थे। मुझे वो मंडल का दौर याद आने लगा कि अफसोस नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमने मंडल का दौर नहीं देखा था। हमने कम से कम यूजीसी रेगुलेशन का दौर देखा है। कितने अखबार आपने ऐसे पाए जो इस सरकारी दस्तावेज का मूल्यांकन कर रहे थे और आपको ये आंकड़ों के साथ बता रहे थे कि इसमें कहां वो लिखा है कि सवर्ण ही दोषी होगा। लेकिन आपने टीवी चैनल पर चीख चीख करके ये बोला, आपने सड़क पर उतर करके ये बोला कि ये हमारे खिलाफ है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें कहां लिखा है। हम तो ये बताएंगे कि इसमें जो प्रावधान जिसके लिए किया गया था दरअसल उसी के खिलाफ था, यानी SC ST OBC। और ये प्रावधान एक साजिश के तहत ले आया गया ताकि एक तरफ तो लोबियाल साहब ने कहा ना कि वो शंकराचार्य वाली बहस में खुद ही उलझ गए थे। दो धर्म गुरु जो दोनों एक ही धर्म के हैं और दोनों एक दूसरे कहते हैं ये वाला फर्जी, तो वो कहता है ये फर्जी है। बाकी लोग कह रहे थे इसमें हम लोग कैसे कूदे, ये तो सिलेबस चेंज हो गया। टीवी चैनल पर डिबेट भी हो रही, अचानक से ये मुद्दा आ गया, वो मुद्दा गायब। एक तो सर ये साजिश मुझे भी लगती है, दूसरी साजिश ये भी लगती है जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर आतंकी हमला होता है। देश एकजुट है कि अब आतंकियों को सबक सिखाओ और 8वें दिन कैबिनेट मंत्री आकर के देश को बताते हैं कि भारत सरकार अगले साल जाति जनगणना कराने जा रही है। जबकि उसके पहले कह रहे थे जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। ये उनका बयान था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि जो जात की बात कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ उनको बांटने की बात कर रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर। अचानक आपने कहा कि आप जाति जनगणना कराएंगे और वो भी आतंकी हमले के बीच में। ये मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपनी किताब में बाकायदे इसको लिखा भी है। फिर पहले फेज का नोटिफिकेशन आता है, फेज 1, जिसमें 33 सवाल है और 12वां सवाल कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तो घर गिने जाएंगे, ओबीसी और जनरल के नहीं गिने जाएंगे। एक बड़ी साजिश उधर भी कह भी दिया कि जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसमें कॉलम नहीं बनाया। फिर ये अभी तो कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया, लेकिन उनके लोग कहते हैं कि ये फेज 1 है, फेज 2 में होगी जाति जनगणना। तो फेज 1 में SC ST को क्यों गिन रहे हो? इस डेटा को उससे टैली करोगी तो फिर कहते हो कि गलत डेटा है, फिर अगली बार के लिए मुद्दा गायब। तो कहीं बड़ी साजिश के तहत तो ये प्लान नहीं किया गया था, ये मेरा संदेह है। दूसरा संदेह, अगर आपको हित करना भी था तो इस प्रावधान को इतना अस्पष्ट क्यों बनाया कि पहले ही दिन की हियरिंग में इस पर रोक लग गई। आपको तो इतना मजबूत इसे बनाना चाहिए था कि आपके बनाए हुए सरकारी दस्तावेज को कोर्ट कह रहा है कि अस्पष्ट है, न्यायालय में कहा जा रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है, तो आपने ऐसा क्यों बनाया? और बनाया तो उसको बचाने के लिए आप खड़े भी नहीं हुए। न्यायपालिका में जब दोनों जज सवाल पूछ रहे थे तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? क्या सरकार अपने इस अध्यादेश का बचाव में खड़ी हुई? सरकार ने कुछ किया ही नहीं। शायद उनका काम हो रहा था सड़क पर। और मैं दूसरे पक्ष के वकील को कोट कर रहा हूं जिसने ये बात कही कि जज साहब आप बिना हमारा पक्ष सुने अगर फैसला दे रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप, ये तो अच्छा तरीका है कि आप कोई कानून बनवाएं, सड़क पर कुछ लोगों से विरोध करवाएं और फिर कोर्ट में बिना हमारा पक्ष जाने उस कानून पर रोक लगा दें। इस तरह से वो फैसला दिया गया। मैं आऊंगा फैसले पर आकर में, क्योंकि उस फैसले में इस पर बात करते करते वही जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उस कमेटी में भी उस न्यायालय में उस जज में शामिल थे, जजमेंट में, जिसने ये कहा था कि साल 2012 का यूजीसी का रेगुलेशन अब कारगर नहीं है जातिवाद रोकने के लिए। उन्होंने ही बोला था कि अब और सख्त नियम बनाया जाए।
और आप जब चीफ जस्टिस बन गए तो ज्यादा सख्ती आपको पसंद नहीं है। मैं बहुत डरते डरते उनके बारे में कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है कंडेम्ड ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन बीजेपी के एक सांसद के ऊपर नहीं होगा जो ट्वीट करके लिखता है जैसा मैंने कहा था जजमेंट वैसा ही आया। मैं कहूंगा तो मेरे ऊपर कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन उनका जज साहब ने वही मान लिया जो उन्होंने ट्वीट किया था। कुछ दिन पहले वही एक आंकड़ा बता रहे थे, अभी भी आप गूगल करिएगा। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम बड़ा गड़बड़ है, इसलिए 70 से 80% जज केवल सवर्ण है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। और उन्होंने, और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा को आंकड़े बताए हैं 78% केवल सवर्ण लोगों की जजों में, हाई कोर्ट के जजों में नियुक्ति होगी। मैंने नहीं बताया, भारत सरकार ने बताया। और भारत सरकार के उस तरह के लोग में मीडिया में कौन बैठा था जो ये कह रहा था कि ये जातिवादी फैसला है? कौन सड़क पर विरोध कर रहा था? कौन न्यायालय में फैसला दे रहा था? और कौन मिठाई खा रहा था? इससे तय हो जा रहा है कि जब इस पूरे प्रोसेस में SC ST OBC कहीं है ही नहीं, तो फिर उनका पक्ष कौन सुन रहा था? अब आते हैं जरा इस पर कि एक एक करके जान ले। मैं कागज साथ में लाया क्योंकि मौजूदा निजाम को कागजों से बहुत मोहब्बत है। वो हर चीज में कागज मांगते हैं, तो मैं उनके कागज के आधार पर इस बात को साबित करूंगा आपके बीच में कि ये दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी कमेटी बनाने का प्रावधान था जो मजबूरी में लाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के रेगुलेशन को कमतर बताया था। सुखदेव थोराट कमेटी 2007 में बनी, पुराने लोग सब जानते होंगे। उस कमेटी ने बाकायदे डेटा के साथ बताया कि इस देश के कैंपसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। हॉस्टल में बढ़ रहा है, मेस में बढ़ रहा है, क्लासरूम में बढ़ रहा है, स्टाफ रूम में बढ़ रहा है। कैंपस के भीतर जाति के नाम पर भेदभाव आंकड़ों के साथ बताया था। 2012 में यूजीसी ने खुद उसके लिए एक प्रावधान किया और SC ST उसमें शामिल था, OBC नहीं था। अब OBC शामिल हो गया तो कैसे इतना जल्दी नाराज हो गए लोग? अभी हम उस पर भी आएंगे। वो ये नहीं देखते कि देश के प्रधानमंत्री भी तो OBC हैं, तो OBC के लिए न्याय मिलने का रास्ता खुला। और ये बात आपको पसंद नहीं आई, लेकिन जब रोहित वेमुला का केस हुआ, और मैंने ठीक कहा संचालिका ने कि मैंने अपनी पहली किताब रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई संभावनाओं के नाम ही समर्पित की थी, और साल 2016 था। और रोहित वेमुला के मामले ने यह साफ तौर पर बताया कि हमारे कैंपस अब जातिवाद के और बुरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और वही केस जो उनकी मां ने किया, उसके बाद उसमें जुड़ा 2019 का मामला डॉक्टर पायल तड़वी का, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, डॉक्टर पायल तड़वी। और लिख के दोनों जगहों पर आपने साफ तौर पर सबूत के साथ देखा कि उन्होंने कहा कि मेरे जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। उनके तरफ से भी जब उस मामले में पैरवी हुई, और उसके बाद 2023 में दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद दूसरा मेडिकल का इंस्टीट्यूट था, और तीसरा IIT। अभी तो ये UGC वाला प्रावधान IIT और IIM पर लागू भी नहीं हो रहा था, ये तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी कोशिश साजिश के भेंट चढ़ गई। आपने प्रावधान ही इतना लचीला बनाया और इतना अस्पष्ट बनाया कि पहली हियरिंग में रोक लग गई। हम तो सरकार से इसका जवाब मांगना चाह रहे हैं। तो इन तीनों मामलों के बाद कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई कि 2012 का रेगुलेशन ठीक नहीं है, आप और सख्त रेगुलेशन बनाइए, और उसके बाद फरवरी 2025 में आप एक ड्राफ्ट रेगुलेशन पेश करते हैं, और उसके बाद 8 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री कमेटी एजुकेशन की जब अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तब वो ये आंकड़ों के साथ बताती है कि इस देश के कैंपस में SC ST नहीं OBC के साथ भी भेदभाव बढ़ रहा है, और आंकड़ों के साथ बताती है कि यह भेदभाव रोकने के लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और तो और उस एजुकेशन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी ने कहा कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अब इसमें तो एक लाइन लिखना चाहिए था
अगर आप वाकई न्याय करना चाहते हैं तो SC ST के लिए, OBC के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन उस कमेटी ने कहा है, जिसमें ज्यादा बहुमत सत्ताधारी दल के सांसदों का। 17 लोग उनके हैं, 30 में से 31 की कमेटी थी, एक सदस्य खाली थे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस प्रोविजन से जो गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार का है, तो सरकार का दस्तावेज है ना, इस दस्तावेज का नाम कितना प्यारा, कितना अच्छा। इसका नाम भी था, हाँ इक्विटी, मैं तो हिंदी में पढ़ूंगा, दूर तक बात जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु 2026। अब इसके आगे क्या लिखा कि इसका ये सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे, लेकिन यूजीसी के अंडर में जो आते हैं वही, और उसी तिथि से प्रभावी होंगे। हालांकि भी लागू भी नहीं हो पाए। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि जितना जल्दी फैसला न्यायालय से SC ST OBC को थोड़ा सा गलियारा तो खुला था, झरोखा था, ये इस पर भी रोक लग गई। SIR पर आज तक बिना रोक लगे सुनवाई चल रही है, इस पर भी तो चल सकती थी, और कोर्ट की तरफ से पूछा जा सकता था कि सरकार ने जहां जहां अस्पष्टता रखी है, 1 हफ्ते में उसको स्पष्ट करने के लिए आप एक एनेक्सर जोड़ दीजिए। तुरंत सरकार को तलब करती कि भाई आपने इसमें भेदभाव को डिस्क्राइब क्यों नहीं किया, और केवल इसमें क्या अपर कास्ट ही विलन है, ऐसा नहीं। अब जैसे इसमें जो लिखा है वेग टाइप से सरकार ने इसीलिए लिखा भी था परिभाषाओं में। एक तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, पूरे देश को कौन सा चैनल बताएगा, ये कौन सा बौद्धिक समूह, कौन से मेरिट वाले ये बताएंगे कि इसमें EWS भी शामिल है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जनों और इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना। तो ये EWS में कौन आता है? SC ST OBC। और आपने पूरे इस रेगुलेशन को कह दिया कि केवल सवर्ण विरोधी है। कैसे कह दिया आपने? दूसरा, महिला और दिव्यांग में भी सब आ सकते हैं। आपको परिभाषाओं से दिक्कत थी, कोर्ट में भी इसको पेश किया गया कि जब परिभाषाओं के 5वें बिंदु में यह लिख दिया गया कि धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव होगा तो उसको एक कमेटी प्रोटेक्शन देगी, उनको रोकेगी, समता का समिति बनाई जाएगी। अब ये कोर्ट में जाकर के कहा जा रहा है कि इसमें तीसरा कॉलम अलग से क्यों जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा था कि जाति आधारित भेदभाव जो SC ST और OBC के साथ होता है उसको रोके। इसी पर सारा विवाद हो गया कि इसमें तो भाई तीनों को एक जगह कर लिया गया और बचा अपर कास्ट, उसको विलन मान लिया गया। इसमें कहां लिखा था कि शेड्यूल कास्ट पर अगर कोई OBC भेदभाव करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी? ये सरकार की साजिश थी। इस बात को ऐसे लिखो कि SC ST OBC को लगे कि ये मेरे पक्ष में है, दूसरे तबके को लगे कि मेरे खिलाफ है, और उसके बाद एक दिन वही हो जाएगा जो कोर्ट में हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असली विरोध तो SC ST OBC को करना था इसका, कि आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को क्लियर क्यों नहीं किया? आपने ये बताया क्यों नहीं कि एक अति पिछड़े पर अगर एक पिछड़े समुदाय का व्यक्ति भी कोई भी जातिगत भेदभाव करता है तो उसमें यह भी सजा पाएगा? आपने ये क्यों नहीं लिखा कि एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर OBC अगर कोई जुल्म ज्यादती करता है तो वो भी इसके अंदर में आएगा? लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो गया कि केवल सवर्ण इसके खिलाफ है। इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि यह कंफ्यूजन क्यों किया गया। इसी को कोर्ट ने कहा अस्पष्ट है ये। तो इसका मतलब इतने नादान लोग तो UGC में या उनके ब्यूरोक्रेसी में या हुकूमत चलाने वालों में इतने नादान तो नहीं रहे होंगे कि जो ऐसा कोई ड्राफ्ट रेगुलेशन बना दे जो कोर्ट में कहते कि अस्पष्ट है। इतना बड़ा दस्तावेज आप बना रहे थे और इतनी अधूरी तैयारी से आपको इसको क्लियर करना था। और दूसरा, अगर आपने एक जगह पर लिखा है कि जन्म के आधार पर, लैंगिक आधार पर, नस्ल के आधार पर, तो जैसे आपने जाति के आधार पर लिखा था वैसे ही आप एक एक क्लास सबके लिए जोड़ देते। ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस दस्तावेज को बनाने वाले ने खेल कर दिया, और खेल ऐसा कि सबको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है और उसको पता है कि ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ होना ही नहीं इसमें।
न ये कमेटी बनेगी, न इससे किसी को न्याय मिलेगा। जो होना है वो सड़क पर हो गया और उसके बाद न्यायालय में हो गया। इसलिए मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं और उन लोगों से भी सवाल कर रहा हूं जो टेलीविजन चैनल पर बैठ करके क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इन बातों को क्यों नहीं उन्होंने कहा। अब एक जैसे एग्जांपल उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य वर्ग क्यों नहीं है। अब जैसे मैं जानना चाहता हूं, हालांकि जेएनयू में खड़ा हूं, पूरे टीवी चैनल पर आप ही का कैंपस छाया रहा इस एक लॉजिक के काउंटर लॉजिक में, समझ गए होंगे। एक नारा आपके यहां लगा था, उसकी वीडियो है उनके पास और सारे लोग वही वीडियो चलाते हैं। पता नहीं 3 चीजें हैं, मैं उसको नहीं लूंगा, नहीं तो ये भी वीडियो चल जाएगी। आजकल हम लोग बड़े विवादों में हैं। तो 3 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से कहा गया था कि फला फला फला, और इनको हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हम कभी कहेंगे किसी के खिलाफ भी जूते मारने जैसा नारा नहीं लगना चाहिए, मैं उसको कंडेम करता हूं। और वो किसने लगाया, किसका है, हम नहीं जानते। लेकिन पूरे टीवी डिबेट में केवल यही लॉजिक बन करके आया कि हम अपर कास्ट के हैं, अगर हमारे खिलाफ ये नारा लगा तो कैसे हमको न्याय मिलेगा। अब मैं ये सवाल जानना चाहता हूं कि इस नारे के खिलाफ कोई व्यक्ति जाएगा कंप्लेन करने की, इससे मेरी भावना आहत हुई है। मतलब मैं समझना चाहता हूं ये उनके लिए गाली कैसे है। ये एक दूसरा तरह का जिसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इस तरह का जातिगत भेदभाव जो SC ST OBC के होता है, वो सबसे ऊपर जाति व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ उन लोगों का कौन करेगा जातिवाद। मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई समर तबके से है तो कोई कैसे, अब कोर्ट में क्या बहस हुई कि रैगिंग वाला इशू लाया गया था। सोचिए, वकील रैगिंग को ले आए इसमें कि मान लीजिए मैं अपर कास्ट से हूं और मैं फर्स्ट ईयर में गया और उसके बाद सामने किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने जो सीनियर था मुझसे, वो देखते ही समझ गया कि ये जूनियर है हमसे और उसने रैगिंग कर ली। मैंने उसका विरोध किया तो उसने SC ST एक्ट लगा दिया, इसको लगा दिया। इतना बचकाना लॉजिक। रैगिंग के लिए हर जगह अलग अलग प्रावधान बने हुए हैं। मैं भी 14 साल प्रोफेसर रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। डिसिप्लिनरी कमेटी और प्रोक्टोरियल बोर्ड जैसे ये बने ही इसलिए हैं कि कैंपस के भीतर किसी भी तरह का अगर अन्याय होता है तो आप उसके पास जाइए, वो आपको न्याय देगा। लेकिन बावजूद उन तमाम समितियों के जेंडर जस्टिस के लिए अलग से कमेटियां बनाई हैं कि नहीं बनाई है, और अगर उन कमेटियों के रहते हुए जेंडर जस्टिस के लिए आपको वुमेन सेल और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना पड़ रहा है, तो आप ये मानते हैं ना कि बाकी कमेटियां जेंडर के नाम पर जस्टिस नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का एक हिस्टोरिकल, एक सोशल, कल्चरल एक हिस्ट्री है। तो आपको ऐसी कमेटी बनानी पड़ती है जो महिलाओं के पक्ष में झुकी हुई हो, जिसकी चेयरपर्सन महिला हो, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो, जिसमें महिलाओं की कार्रवाई के लिए तुरंत न्याय मिले, और तुरंत बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, पुरुष के ऊपर है। अब कोई ये कह दे कि इसका दुरुपयोग होता है कि नहीं होता। पिछले 1 साल में 3-4 पुरुषों ने वीडियो बना करके आत्महत्या की है कि महिलाओं ने, मेरी पत्नी ने या किसी ने मेरे खिलाफ इसका दुरुपयोग किया और वो जान से हाथ धो बैठे। बदल दीजिए उस कानून को। दहेज उन्मूलन के लिए आपने कानून बनाया है, भयानक दुरुपयोग होता है, हटा दीजिए उस कानून को। UAPA तो आपने बनाया है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बने कानूनों पर शोधार्थी, प्रोफेसर, पत्रकार जेल में हैं, हटा दीजिए उन कानूनों को। और तो और छोड़िए, आपका सरकारी आंकड़ा कह रहा है ED, CBI जाने कितने संस्थान ऐसे हैं, 90% से ज्यादा वो अपोजिशन के ऊपर लगे और पॉलिटिक्स का एक टूल बन गए हैं, हटा दो उसको भी। क्या लॉजिक है साहब। लेकिन टीवी में इस पर डिबेट नहीं होगी, क्योंकि टीवी में एक एंकर है, एक दिन ट्वीट करती है कि अमेरिका आगे बढ़ जाएगा क्योंकि वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, और जिस दिन कोर्ट से इस पर रोक लगाई जाएगा उसका टाइटल होगा कि पंडित और ठाकुर जीत गए और बांट में पिछड़े हार गए। ये टाइटल उसने बनाया, वो जातिवाद नहीं है। और सारे पैनल में बैठकर देखिए, 8 लोगों का पैनल, 7 एक ही जाति के। वाह जज साहब वाह, आपको ये इतिहास बदलता हुआ नहीं दिखा जब आपने कहा कि हम प्रतिगामी तो नहीं हो रहे हैं। जज साहब को चिंता थी कि कहीं वापस तो नहीं जा रहे। रोहित वेमुला क्या देश को पीछे ले गया कि आगे ले गया? पायल तड़वी का और ऐसी घटनाएं किसी में हुई क्या? हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस क्लॉज में क्यों नहीं ये बात साफ तौर पर लिखी गई थी। और आखिरी बात, इसका जो फॉर्मेशन आप कर रहे थे, कमेटी बना रहे थे, कमेटी का देखिए सबसे पहला पॉइंट, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, 1922 में बना है, 2026 तक 104 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया।
आपको जानकर कैसा लगेगा, और मिलॉर्ड जज साहब लोगों को यह जानकर कैसा लगेगा कि शायद मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय का आज तक कोई भी दलित, कोई भी पिछड़ा और कोई भी आदिवासी वाइस चांसलर नहीं बना है। और फिर भी देश सोने की चिड़िया रहा है और विश्व गुरु बनकर रहेगा। आपको नहीं लगता कि आपके समाज के 90% लोग जिस समय विश्वविद्यालयों में 10% भी नहीं पहुंच पाए, तो ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में 92 डिग्री कॉलेज हैं, और मैं पूछ रहा हूं इतने दिनों से, एक कोई बता दे जिसका प्रिंसिपल SC, ST, OBC है। मैं जानना चाहता हूं, 1, 2, 3 अपवाद होंगे, उसके बाद ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि SC, ST, OBC को न्याय देने वाली कमेटी ही नहीं थी। इसमें आपने लिखा 3 सीनियर मोस्ट फैकल्टी, 3 फैकल्टी मेंबर सीनियर मोस्ट सर बैठे हुए हैं। मैंने अभी ट्वीट किया है, देश भर के कुछ संस्थान हार्वर्ड, कैम्ब्रिज को भले न पीछे छोड़ पाए हों, पता नहीं, मैं तो जब भी शिक्षा पर बात करता हूं अपने को रोक नहीं पाता कि वो लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगी, जो गोबर लीप का कह रही थी कि AC नहीं चलेगी तो ठंडा रहेगा कमरा, वो भी तो इस कमेटी का चेयरमैन होगी क्योंकि वो प्रिंसिपल है। आप मेरिट की बात करके रिजर्वेशन और पॉजिटिव इस तरह के पॉलिसीज का विरोध करते रहे। आपने एक बार सोचा कि 1 अप्रैल 2023 को भारत सरकार देश को यह बताती है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट, 1 वाइस चांसलर शेड्यूल ट्राइब, 5 OBC और 38 कौन? वो भी SC और OBC वाले रिटायर हो गए और नए वाले बनेंगे नहीं। भाई प्रमोशन में कहां जा रहे हैं बोलो? अभी सर ने भी एक बात कही और मैं भी आपसे कह रहा हूं, जितने लोग उनके मुताबिक नहीं है, और जब मैं उनको कह रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। उन सब का प्रमोशन रोका गया है। अगर वो एक्टिविस्ट हैं, अगर वो SC, ST, OBC है, सबका प्रमोशन रोका गया है। वहां भेदभाव नहीं है, वो भी तो इसमें प्रोटेक्ट हो रहे थे। तो ये कमेटी को हेड कौन कर रहा था? और आप कह रहे थे साहब ये केवल हमारे विरोध में आ गए। 3 सीनियर फैकल्टी, मैंने अभी कितने ट्वीट लगाए हैं, जैसे एक BHU का लिया, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और एक दिल्ली विश्वविद्यालय का। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 साल बाद हिंदी विभाग के पहले दलित HOD जब बन रहे थे, तो उनको HOD की चेयर पर बिठाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा। आज साहब कहां आप देख रहे हैं, एक ही जाति के लोग सब भरे हुए हैं, और आपकी कमेटी कह रही कि 3 सीनियर मोस्ट फैकल्टी होंगे, तो वो तीनों कौन होंगे? मैं गारंटी दे रहा हूं। और उसके बाद एक कर्मचारी कौन होगा? कमेटी का बना कौन रहा है कमेटी? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो वो अपने पसंद का कर्मचारी लेगा कि नहीं? अपने पसंद का 3 फैकल्टी मेंबर लेगा। उसके बाद 1-2 नागरिक समाज के प्रतिनिधि। अब नागरिक समाज के प्रतिनिधि कौन होगा? कहां लिखा है कि वो SC, ST, OBC होगा? कहां लिखा है कि वो 3 फैकल्टी मेंबर SC, ST, OBC होंगे? कहां लिखा है कि वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो SC, ST, OBC होंगे? तो 10 मेंबर की कमेटी में 1 SC, 1 ST, 1 OBC भी मान लें तो 7 लोग कौन है? और विरोध वही कर गए। टेलीविजन चैनल वालों ने उनको बताया नहीं। हम भी ये कह रहे थे कि इसीलिए SC, ST, OBC को न्याय देने वाली कमेटी नहीं थी। हम तो इसका विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन अभी SC, ST, OBC सोया था और जो जागा था उसने अपना काम किया। हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। इसमें कहीं UGC ने लिखा कि वो कमेटी मेंबर्स कौन होंगे? एक वेग टाइप की पॉलिसी बना दो, और जो ताकतवर है वो अपना नैरेटिव देश में फैला दे कि ये मेरे विरोध में है, और सड़क पर उतर कर आप नारा लगाओगे कि UGC लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। ये नारा लगा कि नहीं लगा? और तो और मुझे बहुत खराब लगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को उनकी जाति का नाम लेकर के लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर गाली दी। मैं इससे मेरी भावना बहुत आहत हुई है, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को जाति का नाम लेकर के कृपा करके गाली न दिया जाए। और लोग ऐसे ऐसे पुतले पर मुक्का मार रहे थे, मुझे खराब लग रहा था। लेकिन अचानक सोचिए, जातिवाद इतना बड़ा है कि आपको विरोध करना था पॉलिसी का, आपको प्रधानमंत्री की जाति याद आई कि नहीं आई? और जातिवादी हम हैं। आगे सुनिए, इस पूरी कमेटी को बनाने के बाद इस कमेटी का प्रोविजन जो है उसमें कहा गया है कि वो जो समता दल बनेगा, समता स्क्वाड बनेगा, और ये सब होगा। 24 घंटे के अंदर मीटिंग होगी, 7वें दिन एक्शन लिया जाएगा, 22 दिन के भीतर रिपोर्ट आगे जाएगी, हर 6 महीने पर रिपोर्ट पेश होगी, सब कुछ था। लेकिन उस कमेटी को क्यों नहीं कोई आपको बताने गया? और वो उन सारे एंकराओं से
पूछिएगा जिन्होंने जीते जी सिनेमा स्टार धर्मेंद्र को मार दिया था और वो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि फेक न्यूज अगर हम फैलाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा चैनल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस्लामाबाद और कराची कौन कब्जा कर रहा था। इसमें लिखा हुआ है अपील, पॉइंट नंबर 9, 3 कॉलम बने हुए हैं अपील के। और पहला अपील कर सकती है समता समिति की प्रतिवेदन से असंतुष्ट होकर के अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो 30 दिन के भीतर एमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त किया जाएगा जिसके पास आप अपील कर सकते हैं। क्यों नहीं देश के टेलीविजन चैनलों ने और विरोध करने वालों ने यह क्लॉज पढ़ा? दूसरा पॉइंट है लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान करके इस जांच को आगे बढ़ाएगी। और तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण अधिनियम 2023 के तहत उस अपील के ऊपर भी कार्रवाई करने का आपको मौका 30 दिन के भीतर आपको न्याय मिलेगा। लोग सड़क पर चुटकुले सुनाने लगे कि अब एक अपर कास्ट की लड़की होगी, एक शेड्यूल कास्ट का लड़का होगा, वो उसको प्रपोज करे, वो उसको मना कर दे, लड़का जाके कह देगा कि मैं तुम्हें अभी समता समिति में तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देता हूं। इतना आसान है। एक तो समाज में मैं नहीं बोलना चाहता वो सारी बातें कि प्रपोज कौन किसको करेगा, इसका भी एक कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल यहाँ पर जब विभाजन बना हुआ है तो भी तो उन गहरे प्रश्नों पर कोई जा ही नहीं रहा था। और पलट के अगर वही लड़की उसको झूठे केस में फंसा दे तो हर एक कानून का दुरुपयोग आप कर सकते हैं। इस आधार पर कानूनों को बनने से रोक देंगे, लेकिन जिसने कानून बनाया उसने जानबूझकर ऐसा वेग बनाया कि इसका दुरुपयोग होता रहे या इतना स्पष्ट ही ना हो कि इसका उपयोग कैसे करना है, यह भी कोई नहीं समझ पाए। इतना बड़ा खेल खेला गया और इसलिए इन प्रावधानों को किसी ने नहीं बताया कि ये प्रावधान भी तो इसमें है। और इस तरह की तमाम चीजों को खारिज करते हुए जज साहब ने क्या कहा, आप कृपा करके हॉस्टल बनाने की बात आप इसमें लिख रहे हैं, आप देश को बांटिए मत। अरे भाई हम बांट रहे, ये तो तुम उन नेताओं वाले बयान का समर्थन करते हो जिन्होंने कहा था बंटना मत, बंटोगे तो डैश डैश डैश। अरे कौन दलित पिछड़ा चाहता है कि हमको पैर से पैदा करके बांटो? उसने कहा कि हमको बांटो, किसने बांटा है? और मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में बाकायदे चैप्टर लिखकर समझाया कि बांटने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए और उन्होंने एक व्यक्ति को पैदा किया मनु और फिर उनसे एक स्मृति लिखवाई, फिर उसमें लिखवाया ये। अरे नहीं भाई, आपका समाज बटा हुआ है और इस बटे हुए समाज को एक करने के लिए मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट पर सबसे ऊपर जो लिखा है, मैं न्यायप्रिय बात कर रहा हूं, जिसको 9 जजेस की बेंच ने इंडोर्स किया था। समानता केवल समान लोगों में ही हो सकती है। असमान लोगों के लिए समान नीति बनाना, उस असमानता को स्थिरता प्रदान करना। 5 किलो अनाज केवल गरीब को दिया जाता है ना, अमीर को तो नहीं देते। तो कह दो अमीरों की ये तो भेदभावपूर्ण नियम है, किसके घर में शौचालय नहीं है उसी घर में बनेगा ना, उसको पैसा देते हो, हर चीज करते हो आप। हर नियम भेदभावकारी है जो कमजोर के हक में बनता है। और आपने इस नियम को केवल इस बात पर खारिज करना शुरू कर दिया कि यह भेदभावकारी है। चूंकि आपके समाज में भेदभाव है, उसे दूर करने का नियम भी तो भेदभावकारी बनेगा। कल को इस देश के सारे पुरुष खड़े होकर के कहें कि ये जेंडर इक्वलिटी सेल में, ये वुमेन सेल में पुरुष प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, और अगर पुरुष का हरासमेंट होगा तो उसके लिए भी एक सेल बनाओ, तब तो यहां पर आपकी डिबेट पहुंच जाएगी। क्या इतना आप हल्की बातें करके एक गंभीर विषय को आपने पूरे देश में डिरेल कर दिया। इस देश में आपके आंकड़े बता रहे थे, जिसको आप ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि 178 घटनाएं हुई थी, जो 173 से बढ़कर 378 हो गई। 118% जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। ये बात आप कहकर के विरोध कर रहे थे ना, आप इसको संख्या में नाप रहे हैं। और एक व्यक्ति, उसी खेमे का व्यक्ति टेलीविजन चैनल पर बैठ करके कह रहा है ये रोहित वेमुला का चूरन हर जगह मत फिट करो। अगर आपने देखा होगा तो समझ जाइए, उसको वही वाली एंकर करिए, जी आप न बोले। 40% हुआ, 2000 अपॉइंटमेंट यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस में तो चलो वही लोग आएंगे। 40% तो ओपन फॉर ऑल है। एक अपॉइंटमेंट बता दो जिसमें SC/ST OBC का आपने वहां अपॉइंटमेंट किया। एक अपवाद में कोई अपना चहेता अपने तरफ का होगा, किसी वजह से कर लिया होगा, 1 आध 2 4 मिल जाएंगे। ऐसा अपवाद अमूमन होता नहीं। और जब से अब विश्व गुरु बनने का संकल्प लिया है देश ने, तब उसके बाद तो कभी नहीं होता। जिसको देखने में लगता है कि बहुत शानदार है, लेकिन मंशा उसकी ऐसी नहीं थी कि वो इतना क्लियर हो ताकि वो लागू हो। इससे ज्यादा क्लियर डॉक्यूमेंट 2012 का था, उसके पहले का था, जो डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करता है कि कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं।
आपको क्लासरूम में कह दे, कोई जाते ही पूछ दे, अरे तुम क्या जवाब दोगे, तुम तो कोटे से आए हो, बैठ जाओ, इसमें तो जाति आई भी नहीं। तो साहब ये देश इतना बारीक है और आप इसको इतने हल्के चुटकुलों से आपने इसका विरोध करवा दिया। टेलीविजन चैनल पर इतने हल्की बहसें आपने करा दी। आंख देख करके लोग ये कह देते हैं, अरे भैया अच्छा तुम कोटे वाले, अभी कुछ बोल देंगे तो तुम केस कर दोगे। ये क्या है? आपने कितने तरह के डिस्क्रिमिनेशन बना रखे हैं और आप ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की पॉलिसी बनेगी तो वो नफरत पैदा कर देगी। नहीं साहब, सफेद गोरों पर जब गैर बराबरी, जज साहब को भी अमेरिका याद आया था। मैं वहीं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत लंबी बात हो गई। जज साहब ने अपने टिप्पणी में कहा कि क्या आप इस देश को अमेरिका बना देना चाहते हैं कि गोरों के लिए अलग स्कूल, कालों के लिए अलग स्कूल? तो हम भी कहना चाहते हैं जज साहब, अमेरिका 2 विश्व युद्ध झेला और जिस बिल्डिंग का नाम व्हाइट हाउस रखा था वहां 2 ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके। इस देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई दलित नहीं बन पाया, आदिवासी नहीं बन पाया। अमेरिका डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी लागू करता है और अमेरिका हर अपने पब्लिक स्पेस का हर साल मैपिंग कराता है, उनकी फिल्में भी बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां काले लोग विलन और गोरे लोग नायक होते हैं। वहां जब गृह युद्ध हुआ, और अभी बात की घटना है, आप सब जानते होंगे, कोविड के आसपास एक व्हाइट ने ब्लैक के गर्दन पर जब पैर रख दिया था और वो मारा गया, और उसके बाद पूरे अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो व्हाइट्स लोगों ने घुटने पर बैठकर माफी मांगी। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर की तरह टीवी पर बैठकर नहीं कहा कि मेरे पूर्वजों ने कोई गलती की या नहीं की, उसकी सजा मैं क्या पाऊं। अमेरिका के व्हाइट लोगों ने घुटने पर बैठ के कहा कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने नस्ल भेद किया, हम आज से एक ऐसा अमेरिका बनाएंगे जिसमें कोई नस्ल भेद नहीं होगा। और वह अमेरिका आज बराबरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस देश में उन लोगों ने जिन्होंने जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उन्होंने कोई एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया हो तो बताइए। एंटी कास्ट मूवमेंट चलाने वाले, बात करने वाले लोगों को आपने अपना माना? महापंडित राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह और अभी इस कमेटी के भी एक चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह। इसमें से कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं। हम चाहते हैं न्याय, हम चाहते हैं समता, हम चाहते हैं बराबरी। और बराबरी गैर बराबरी की अगर खिलाफ होगी तो वो गैर बराबरी वाले नियम पर बनाई जाएगी। इसलिए इस बात को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए, इस पर और डिबेट की जाए। सरकार को चाहिए कि इसका पक्ष और स्पष्ट करे और ये कमेटी बहुत जरूरी है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ लाई जाए ताकि वाकई उनको न्याय मिले जिन्हें सदियों से न्याय नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे माता पिता लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत उन्होंने देखी संस्थानों में वो यही है कि ना केवल छात्रों के साथ जो एससी एसटी ओबीसी समुदाय से आते हैं, बल्कि अध्यापकों के साथ भी भेदभाव होता है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साथियों, भारत देश की एक कड़वी सच्चाई रही है कि सालों से जाति सबसे बड़ा आधार रहा है भेदभाव का, और वो आज भी बरकरार है। और अब जब ये यूजीसी इक्विटी बिल लाया गया तो लोगों ने मोर्चे निकाले देश भर में, उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे। तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब समझने के लिए आज हमने इस चर्चा को सुना। हमारे साथ लक्ष्मण सर और लोबियाल सर ने चर्चा करी लंबी, और इस चर्चा के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब आपको मिले होंगे, और साथ ही साथ जो ये यूजीसी इक्विटी बिल है इसकी असलियत भी आपको समझ में आई होगी। और साथियों, ये एसएफआई का लंबा संघर्ष रहा है कि जाति जो व्यवस्था है उसके साथ, उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, और हमारा ये मानना है कि ये संघर्ष आगे भी जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि हालात इस देश के बहुत बुरे हैं। और आज